Hello students. So today I will begin a new chapter of history, chapter number 6, and the name of the chapter is Towns, Traders and Craft Person. So in this chapter we will study about some major towns and traders and craft person of medieval period of India. So let's begin this chapter. So first you should know that what is the meaning of medieval period. Medieval period means this is the time period of 1000 year from 750 AD to 1750 AD. तो इस बीच में इस 1000 टाइम पीरियड में कौन कौन से नए टाउन्स साउथ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया में डेवलप हुए हैं, वहाँ पे कौन कौन से आर्टिस्ट लोग आए हैं, किस तरह की ट्रेडिंग एक्टिविटी डेवलप हुई है, ये सभी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे. So between this, in this period, several towns were emerged during this period that were the center of trade and commercial activity, craft production, administrative centers, and temple as well as pilgrimage center. So these are the towns, there were the towns and cities which used to perform a number of activity collectively. So if you are able to see on the screen, so here different name of the cities are shown like Surat, Ahmedabad, Somnath, then Bidar, Golconda, Masulipatam, Tirupati, Mahabalipuram, Thanjavur, then Urayur, Madurai. Okay, ऊपर अगर आप देखेंगे तो वृंदावन, अजमेर, पुष्कर. So these are the towns. Every town have some specific with this. तो ये सारे towns इस टाइम पीरियड में डेवलप हुए हैं. कोई अपने क्राफ्ट, कोई अपने हैंडीक्राफ्ट को लेकर बहुत फेमस हुआ है. किसी टाउन को किसी राजा ने अपनी कैपिटल बनाया, वहां पर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को डेवलप किया, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन बन गया. और कुछ ऐसे भी टाउन थे जहाँ पे ट्रेड होता था, जहाँ पे बाहर बाहर से ट्रेडर्स आते थे अपने सामानों को लेकर, वहां पे सेल करते थे. तो वो एक तरीके से ट्रेडिंग हब बन गया और उस टाउन को हम ट्रेडिंग टाउन के नाम से जानने लगे. तो इस तरीके से हर एक शहर में अलग अलग एक्टिविटी होती थी. एंड देयर वर some cities which have a combined activity, which have a very big temple as well as that have a administrative center also, as well as work as a commercial town also. तो इन सब के बारे में हम आगे देखेंगे. So now we will take up the example of an administrative center. Here we will see about a Thanjavur city that was the capital of Chola kingdom. And in chapter 2 you already studied about a Chola dynasty. तो यहाँ पर हम स्पेशली थंजावुर के बारे में एज अ टाउन देखेंगे कि क्यों हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कहते हैं. So this Thanjavur was the capital of Chola dynasty. What is the location of a Chola dynasty? Area of a Chola dynasty? This whole area was known as a Chola Empire. चोला अंपायर इस पूरे एरिया में फैला हुआ था. ठीक है, ये बहुत बड़ा एरिया है और इस अंपायर में बहुत सारे पावरफुल राजा हुए हैं जिन्होंने एक एक करके बहुत सारे रीजन को जीता है और फिर इस वजह से इनका रीजन बहुत ही बड़ा हो गया है. एंड द कैपिटल ऑफ अ चोला डायनेस्टी वाज थंजावुर. ठीक है, थंजावुर इज द लोकेशन ऑफ अ थंजावुर एरिया इज हेयर. उसी के बगल में उरैयूर भी है. उरैयूर के बारे में भी अभी आप यहाँ पर देखेंगे. तो Thanjavur is the city where means near of it Kaveri river flow. कावेरी रिवर यहाँ पर बहती थी एंड कावेरी रिवर की वजह से यहाँ पे पानी की कोई भी परेशानी नहीं थी. इट्स मीन देयर आर द नेचुरल सोर्स ऑफ द वाटर as well as the people of this city created many artificial means to supply the water like well, tanks and as well as canal also. And थंजावुर वैसे तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है लेकिन ये टेम्पल टाउन भी था. क्यों हम इसे टेम्पल टाउन कहते हैं? बिकॉज अ वेरी फेमस टेम्पल दैट वाज राजा राजेश्वरा टेम्पल. दिस टेम्पल also built up
by King Raja Raja Chola. And this is the temple. Through the wall of it, we also come to know the architect of this temple. So who was the architect of this temple? That was Kunjara Mallam Raja Raja Perun Thachal. This was the architect. और उस समय क्या होता था, स्पेशली साउथ इंडिया में, जब भी कोई आर्किटेक्ट किसी मंदिर को बनवाता था, बनवाने में उसका डिजाइन प्रिपेयर कराता था राजा के कहने पर, तो वो अपने नाम को भी वॉल पे लिखवा देता था, क्योंकि ये बहुत ही शान की बात होती थी, बहुत ही गर्व की बात होती थी किसी टेम्पल को बनवाना. एंड इट वॉज वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम. सो इसका मतलब कि थंजावुर में एक बहुत फेमस टेम्पल है. इट्स मीन दिस प्लेस हैज बिकम अ टेम्पल टाउन. बट नाम तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, हम तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के बारे में पढ़ रहे हैं. तो ये जो जगह है थंजावुर, दिस वॉज ऑल्सो एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर. वाई? बिकॉज देयर वॉज अ पैलेसेस नियर दिस टेम्पल. और पैलेस होने के साथ साथ देयर वॉज मंडपास ऑल्सो, वेयर kings hold courts, and in this court they used to issue orders to their subordinates. Subordinates कौन होते हैं? The officers, the सामंतास, जो कि अलग अलग प्रोविंसेस में राजा के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं काम को करने के लिए. तो यहाँ मंडपास भी होते थे, और उसके साथ साथ आर्मी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, आर्मी को रखने के लिए बैरक्स भी होती थी. सो इस वजह से हम इसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कहते हैं. चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या था इस शहर में. सो देयर वाज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट दैट सेलिंग ग्रेन्स, स्पाइसेस, क्लोथ्स, ज्वेलरी. एंड फॉर मेकिंग दीज थिंग्स देयर वर अ स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी, क्योंकि कोई भी जो काम होता है उसको हर इंसान नहीं कर सकता है. लाइक मेकिंग दी क्लोथ्स, मेकिंग दी पेंटिंग्स, मेकिंग दी अदर हैंडीक्राफ्ट. तो यहाँ पर एक कम्युनिटी थी, एंड द नेम ऑफ दैट कम्युनिटी वाज अ सलैया वीवर्स. ये सलैया वीवर्स थंजावुर में रहते थे, और उसके साथ साथ थंजावुर के बगल में एक और शहर था, उसका नाम था उरैयूर. उरैयूर में भी रहते थे. एंड व्हाट वाज देयर मेन फंक्शन? देयर मेन फंक्शन वाज प्रिपेयरिंग द क्लोथ्स फॉर द फ्लैग, एज वेल एज द क्लोथ्स फॉर द किंग्स, नोबिलिटीज, ऑल्सो फॉर द कॉमन पीपल. क्योंकि सभी लोग कपड़े पहनते हैं, लेकिन कपड़ों की क्वालिटी अलग अलग होती है सबके. तो राजा सुंदर कपड़ा पहन रहे हैं, तो ये कम्युनिटी उनके लिए सुंदर, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट कपड़े बना रही है. कॉमन लोगों के लिए नॉर्मल कपड़े बना रही है. सो दीज वर द फंक्शन ऑफ अ सलैया वीवर्स. रिमेंबर दिस वीवर्स, ओके, द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर वीवर. और इस टाउन में, चूंकि ये टेम्पल टाउन है, तो यहाँ पर एक स्कल्प्टर भी रहते थे, एक मूर्ति बनाने वाले लोग भी रहते थे. एंड दे वर नोन एज अ स्वामी मलई. स्वामी मलई लोग किस तरह की मूर्तियां बनाते थे? दे यूज टू मेक अ ब्रॉन्ज आइडोल्स. याद रखिए, चोला किंगडम में ना तो गोल्ड का मूर्ति बनता था, ना सिल्वर का मूर्ति बनता था, ना आयरन का मूर्ति. वहां पे ब्रॉन्ज आइडोल बनता था. ठीक है. और ब्रॉन्ज आइडोल को बनाने के लिए भी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी थी, दैट वाज स्वामी मलई कम्युनिटी. तो दे यूज टू मेक आइडोल एज वेल एज ऑर्नामेंटल बेल ऑल्सो. मंदिर में घंटी होती है ना, उसी को कहते हैं. तो वो घंटी भी यही कम्युनिटी बनाया करती थी. आई होप आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन की जो स्पेसिफिक क्वालिटीज है वो समझ में आ गई होगी. So first, now let's look at a bronze wax technique, and this technique was used in making a bronze idol as well as bell metal also. And now you should know that what is bronze first of all. The bronze is an alloy that is formed by the mixture of a copper and tin. ब्रॉन्ज एक एलॉय है, एक मिश्रण है जो कॉपर और टिन को मिला करके बनता है. कॉपर भी मेटल है, टिन भी मेटल है, लेकिन इन दोनों को मिलाने से ब्रॉन्ज एक नया एलॉय बनता है. फॉर मेकिंग द बेल मेटल स्पेशली टू सो दैट इट कैन क्रिएट अ वॉइस, the portion of the tin is always greater than the copper.
कॉपर के कंपैरिजन में टिन के प्रोपोर्शन को ज़्यादा करने से जब हम ब्रॉन्ज को बनाते हैं तो उससे जब हम बेल बनाएंगे तो उसमें से साउंड निकलेगी। ये नॉलेज चोला डायनेस्टी के आर्टिस्ट लोगों को था, स्कल्प्टर लोगों को था। सो नाउ अब देखते हैं कि इस ब्रॉन्ज आइडोल को बनाने की जो टेक्निक है उसका नाम है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। सो हाउ दिस लॉस्ट वैक्स टेक्निक वर्क? नाउ फर्स्ट an image was made up of a wax. Now first of all जिस चीज की इमेज बनानी है, लाइक एनिमल की बनानी है या फिर किसी चीज की, किसी और की फ्लावर की इमेज बनानी है या कोई भी चीज, कोई खिलौना बनाना है, तो सबसे पहले उसकी मूर्ति को हम वैक्स के हेल्प से बना लेते हैं। Now then this idol, this image was covered with a clay and then after it was allowed to dry up in the sun. Next it was heated into a fire and then a tiny hole was made in the cover of the clay. Now what's happened after this? The molten wax was drained out through this hole and then molten metal was poured into the clay mold through the hole. Once the metal cooled and solidified, the clay cover was carefully removed and the image was cleaned and polished. सबसे पहले वैक्स से कोई भी मूर्ति बना लेंगे, उसके बाद उसके ऊपर गीली मिट्टी का कवर चढ़ा देंगे और उसको धूप में सूखने के लिए रख देंगे। देन आफ्टर जब वो सूख जाएगा, सूखने के बाद उसको आग में गर्म करेंगे और गर्म करने से that raw soil will be changed into a baked clay and then after a hole will be formed at the below of that image, जिससे कि वैक्स जो पिघल गया है वो उसी होल के थ्रू बाहर निकल जाएगा और उसके बाद उसी होल से हम मॉल्टेन मेटल को उस क्ले इमेज के अंदर डाल देंगे और जिससे कि मेटल अंदर जाकर के कूल हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा और इसके साथ वो इमेज के ही रूप में बन जाएगा। एंड देन आफ्टर क्ले को केयरफुली हम रिमूव कर देंगे और उस मेटल, अब हमारे सामने मेटल का इमेज आ गया है। एंड देन आफ्टर दैट मेटल आइडोल was polished and then now it is ready to sold in the market. So this is the method of lost wax technique of making bronze idol as well as different type of other images.